Hello everyone, welcome to Tathastu and welcome to our daily current affairs MCQs which is being presented by me. My name is Khushbu and in this class we are going to cover a lot many topics through MCQs only. We will be trying to cover different जो topics हैं वो हम touch करेंगे through the MCQs itself, right? And today is the 12th of August and उसी के ही जो MCQs जो है वो हम cover करने वाले हैं. Let's get started. But before that, a little bit of information. 15th of August जो है इस दिन हमारा फ्रीडम बैच में इनरोल करने का लास्ट डे है. तो 15th of August से पहले आप एडमिशन ले लीजिए. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एडमिशन इन BA प्लस UPSC प्रेपरेशन, MA प्लस UPSC प्रेपरेशन, डिप्लोमा प्लस UPSC प्रेपरेशन या फिर ओनली UPSC प्रेपरेशन, you can enroll in any of these courses. NCERT batches are also there. Philosophy optional next month से start हो जाएगा second batch. Essay enhancement program is also going on. You can join this as well. MSLV program is also going on. बहुत सारे programs हैं, आपको जिसमें भी आपकी सहूलियत लगती है you can join in that, right? And apart from that हमारा हिंदी भी जो YouTube चैनल है वो भी लॉन्च हो गया है. बहुत जल्दी कोर्सेज भी लॉन्च हो जाएंगे हमारे हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए. ओके चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द very first question of the day and it is related to the collegium system. Consider the following statements with respect to collegium system. The very first one is that this refers to the method used for selecting judges of the Supreme Court and High Courts. Second is the President of India leads the collegium system of the Supreme Court. The third one is that it is not clarified either in the Indian Constitution or in any parliamentary legislation. You have to find out which of the above statements are correct. Choose your options accordingly. Collegium प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला है, यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के चयन के लिए उपयोग की जाने वाली विधि को संदर्भित करता है. दूसरा है, भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम प्रणाली का नेतृत्व करते हैं. तीसरा है, इसे न तो भारतीय संविधान में और न ही किसी संसदीय विधान में स्पष्ट किया गया है. आपको बताना है कि इसमें से कौन से कथन जो हैं वो सही हैं. आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी. फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट हमारा जो दिया हुआ है दैट इज रॉन्ग. यहाँ पर जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ही इज द वन हु लीड्स दिस थिंग, हु लीड्स द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ओवर हियर. एंड इनके अलावा जो है 4 और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड जजेस होते हैं सेम कोर्ट से. Okay, so this is how the collegium is actually looks like. Let's move on to the next question. Consider the following statements. The very first statement is the Reserve Bank of India sets the inflation target in accordance with the RBI Act of 1934. Second statement is the Reserve Bank of India chooses the wholesale price index as a primary cause of inflation. Third is India has embraced a flexible approach to inflation targeting. So which of these statements are correct? Choose your options accordingly. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला कथन है, भारतीय रिजर्व बैंक 1934 के RBI अधिनियम के अनुसार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करता है. दूसरा है, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति के प्राथमिक गेज के रूप में थोक मूल्य सूचकांक WPI को चुनता है. तीसरा है, भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण के लिए लचीला दृष्टिकोण अपनाया है. इसमें से कौन से जो ऑप्शंस हैं, कथन हैं, सही हैं? चूज योर आंसर अकॉर्डिंगली. सो यहाँ पर आंसर इज ऑप्शन सी. थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है. अपना जो इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर रॉन्ग हैं. यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है, हियर एज पर दी सेक्शन 45ZA of the RBI Act of 1934, central government establishes the inflation based on the consumer price index. Okay, तो ये consumer price index के ऊपर set होता है. RBI employs the consumer price index
as the primary indicator of the inflation. So CPI combined is the one which actually is being used as an indicator of the inflation. तो inflation इसी के basis पे जो है वो check किया जाता है that whether it is or not. Third question is with reference to IMS-1 satellite bus, consider the following statements. The very first one is that it was formulated by UR Rao Satellite Center. Second is its main application lies in underwater exploration and marine investigation, assisting the examination of oceanic ecosystems and subaquatic geological structures. So, which of these options are correct? Choose your code accordingly. IMS सैटेलाइट बस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला है इसे UR राव सैटेलाइट सेंटर द्वारा तैयार किया गया था. दूसरा है इसका मुख्य अनुप्रयोग पानी के भीतर अन्वेषण और समुद्री जांच में निहित है, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और उपजलीय भूवैज्ञानिक संरचनाओं की जांच में सहायता करता है. इसमें से कौन से कथन जो है वो सही है? सो द आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन ए. ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट ओवर हियर. द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. यहाँ पर ये इट इज अ काइंड ऑफ अ कॉम्पैक्ट सैटेलाइट प्लेटफॉर्म created to provide economical entry to that of the outer space, so that बजट में जो काम है वो वाला हो सके. तो उसके बेसिस से इस पर्टिकुलर पर्पज से इस प्लेटफॉर्म को जो है वो रेडी किया गया है. द स्पेसक्राफ्ट कैन फंक्शन एज अ डेडिकेटेड कैरियर फॉर डाइवर्स पेलोड्स एंड सपोर्टिंग tasks such as the Earth observation, studies of the oceans and atmosphere, remote sensing through microwaves, and missions related to the space science. All these things can be done. Okay, so ISRO transfers satellite bus technology to the private firm. So this is the one which was in news recently. Now the next question is with reference to the National Dental Commission Act 2023, consider the following statements. The very first statement says that the legislation sets up the National Dental Commission and requires the establishment of state dental councils or collaborative dental councils. Second is the legislation eliminates the idea of maintaining any type of registry for authorized dentists and dental auxiliaries. Third is the legislation establishes a predetermined term for the chairperson, members and secretary of commission without any option for the reappointment. So you have to choose that which of the above statements are correct over here. Now the question in Hindi. राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला कथन है कानूनी राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग की स्थापना करता है और राज्य दंत चिकित्सा परिषदों या सहयोगात्मक दंत चिकित्सा परिषदों की स्थापना की आवश्यकता है. दूसरा कथन यहाँ पर यह है कि कानून अधिकृत दंत चिकित्सकों और दंत चिकित्सा सहायकों के लिए किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री बनाए रखने के विचार को समाप्त कर देता है. तीसरा है कानून पुनर्नियुक्ति के किसी भी विकल्प के बिना आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और सचिव के लिए एक पूर्व निर्धारित कार्यकाल स्थापित करता है. आपको बताना है कि इसमें से कौन से जो ऑप्शंस हैं जो करेक्ट है. सो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी. फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स करेक्ट है. यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है. अभी मॉनसून सेशन चल रहा था तो उस बेसिस पे जो है बहुत सारे बिल्स जो है वो आए हैं, बहुत सारे एक्ट्स भी बने, बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो भी करे गए हैं. The legislation will ensure the creation and upkeep of an online and real-time national register containing authorized dentists and dental auxiliaries. So this is why the second statement is wrong over here. Question number 5. Consider the following statements about APEDA. APEDA.
APIDA, the very first statement is it is legally established entity operating within the framework of the Ministry of Commerce and Industry. Second is its objective is to foster and facilitate the export of products listed in the APIDA Act of 1985. Third is it offers monetary support, information directives and directives to aid the advancement of products listed in the schedule. So how many of the above statements are correct over here? एपीडा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कहता है यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के ढांचे के भीतर काम करने वाली एक कानूनी रूप से स्थापित इकाई है। इसका उद्देश्य, दूसरा है इसका उद्देश्य एपीडा अधिनियम 1985 के में सूचीबद्ध उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना है। तीसरा है यह अनुसूची में सूचीबद्ध उत्पादों की उन्नति में सहायता के लिए मौद्रिक सहायता, सूचना और निर्देशन प्रदान करता है। आपको बताना है इसमें से कौन से कथन जो हैं वो सही हैं। आंसर है यहाँ पर सी, तीनों ही स्टेटमेंट्स जो दिए हुए हैं दैट इज करेक्ट ओवर हियर। APIDA फैसिलिटेट्स एक्सपोर्ट ऑफ फ्रेश पोमेग्रेनेट्स टू USA बाय एयर। सो बाय एयर यानी कि प्लेन की सुविधा का इस्तेमाल करते हुए हम अनार जो है वो USA सेंड करने की बात कर रहे हैं। ओके, सो इसके एस्टैब्लिशमेंट और जुरिस्डिक्शन की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एस्टैब्लिश करे थे। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के तहत 1985 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इसका गोल क्या है? टू फॉस्टर एंड एनहांस द एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज लिस्टेड इन इट्स शेड्यूल। इसके शेड्यूल में जो भी लिस्ट में जो भी चीज़ों का नाम दिया गया है, राइट, तो जो भी कमोडिटीज़ का नाम दिया गया है तो उसके लिए एक्सपोर्ट करने का जो सुविधा है वो प्रदान करना इसका काम है। इसका हेडक्वार्टर्स जो है दैट इज ओवर देयर इन दी न्यू दिल्ली। ओके, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच रिवर इज द ओमकारेश्वर रेजर्वोयर सिचुएटेड? ओमकारेश्वर जलाशय किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, गोदावरी, यमुना, महानदी। तो कौन सी नदी जो है जिसके ऊपर आपको ओमकारेश्वर रिजर्वॉयर जो है वो स्थापित मिलेगा? तो आंसर है यहाँ पर ए, यानी कि नर्मदा नदी। ठीक है, तो NTPC REL clinches 80 megawatt floating solar project in the Madhya Pradesh. Okay, so largest floating solar project इंडिया का ये माना जा रहा है। ठीक है, the most extensive floating solar venture in India consists of 100 megawatt setup situated at the NTPC Ramagundam in the तेलंगाना। तो ये सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर वेंचर जो है वो माना जा रहा है, जो कि रामगुंदम में है एंड वो कहाँ पर है? तेलंगाना में है। ओके, एंड यहाँ पर जो ये बात करते हैं ओमकारेश्वर डैम की, सो इट इज अ ग्रेविटेशनल डैम लोकेटेड ऑन द नर्मदा रिवर which is at the just the upstream of the Mandata in Khandwa district, which is there in the Madhya Pradesh. Next question, question number 7. Consider the following statements. The very first statement is the nutrient based subsidy, that is the NBS, encompasses fertilizers such as phosphorus and that of the potassium. Second is urea is excluded from the nutrient based subsidy program, thus remaining subject to price regulation. Third is within India the sale of fertilizers is free from the imposition of GST. So how many of the above statements are करेक्ट ओवर हियर? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है पोषक तत्व आधारित सब्सिडी में फास्फोरस और पोटेशियम जैसे उर्वरक शामिल हैं। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है यूरिया को पोषक तत्व आधारित सब्सिडी कार्यक्रम के बाहर रखा गया है, इस प्रकार यह मूल्य विनियमन के अधीन है। तीसरा है भारत के भीतर उर्वरकों की बिक्री GST लगाने से मुक्त है। आपको बताना है इसमें से कौन से कथन जो हैं वो सही है। आंसर है यहाँ पर बी। यहाँ पर जो दो स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट है। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट
रॉन्ग है। हाउस पैनल टेल्स गवर्नमेंट टू एंश्योर फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी, इंक्रीज लोकल प्रोडक्शन। सो लोकल प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने की यहाँ पर जो है वो बात कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की कवरेज की अगर बात करें तो इट इंक्लूड्स द फर्टिलाइजर्स as that of the phosphorus and potassium fertilizers, P&K fertilizers जो हैं वो, यूरिया एग्जेम्पशन फ्रॉम एनबीएस एंड प्राइस कंट्रोल। एनबीएस के अंतर्गत जो है यूरिया को कवर नहीं किया जाता है, लीडिंग टू इट्स रिटेंशन विद इन द रियल्म ऑफ प्राइस कंट्रोल। ओके, सो दिस इज व्हाट इज related to this particular question. Now the last question of the day, it is related to the Asiatic lions. The very first statement is these species are included in the Schedule 1 of the Wildlife Protection Act of 1972 and categorized as endangered on the IUCN Red List. Second is presently Asiatic lions exclusively inhabit the Indian state of Gujarat. Third is the Asiatic lion conservation effort is linked to Project Simba. So you have to find out how many of the above statements are correct over here. एशियाई शेरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है इन प्रजातियों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है और IUCN लाल सूची में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा कथन यहाँ पर कहता है वर्तमान में एशियाई शेर विशेष रूप से भारतीय राज्य गुजरात के निवास करते हैं। तीसरा है एशियाई शेर संरक्षण प्रयास प्रोजेक्ट सिम्बा से जो है जुड़ा है। आपको बताना है इसमें से कौन से ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स। आंसर इज ऑप्शन सी, तीनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ पर करेक्ट हैं। So World Lion Day 2023, how do we conserve our Asiatic lions? सभी कोई बचाने का ही काम चल रहा है और बचा किससे रहे? हम खुद से, और हम ही बोल रहे हैं कि हम बचाएंगे। खैर, सो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो इनका साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियोपर्सिका है। एशियाटिक लायंस का प्रोटेक्शन एंड एंडेंजरमेंट का बात करें तो यहाँ पर ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में आता है एंड एशियाटिक लायंस को एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा हुआ है IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से। अगर हम देखें तो इनकी साइज का कंपैरिजन करें तो इनकी जो साइज है वो अफ्रीकन लायंस के कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। अफ्रीकन लायंस बहुत ह्यूज होते हैं। हैबिटेट एंड पॉपुलेशन की बात करें तो गिर नेशनल पार्क वो जो कहाँ पर है, विच इज़ देयर इन दी गुजरात, तो यहाँ पर दिस इज द सोल हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लायन population. Sole habitat is the Gir National Park and we need to preserve them, which is really very important for us, for our environment as well. सिम्बा प्रोजेक्ट, सिम्बा की बात करें तो ये है क्या? इट इज सॉफ्टवेयर विथ इंटेलिजेंस मार्किंग बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एशियाटिक लायंस। तो सिम्बा मूवी उसी की बेसिस पे जो है ये नाम रखा। बहुत ही इंटेलिजेंट एक्रोनिम जो है इसका बनाया गया है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है विच इज पावर्ड बाय फोटो आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन टू यूनिकली आइडेंटिफाई द एशियाटिक लायंस। इन सभी को यूनिकली ये आइडेंटिफाई कर सकेगा और इनके पैटर्न्स और मार्क्स जो है उनके बेसिस पे इनको ये आइडेंटिफाई करता है एशियाटिक लायंस को। एंड इसको ये जो सॉफ्टवेयर है दिस वाज डेवलप्ड बाय द गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ओके, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू इंक्लूड एडिंग इन कॉम्प्रिहेंडिंग पॉपुलेशन डेमोग्राफीज conservation population demographics, conservation efforts and overall management of the Asiatic lion. So this is what it actually aims at. Right, so this is it for our daily current affairs MCQs. I hope you people enjoyed it. बहुत सारे different topics जो हैं वो हमने touch किए थे through the MCQs itself. So see you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Good night.